Ready? Okay. Good evening, everyone. And we will continue with the topic of halogen derivatives. And in case of halogen derivatives, we had seen the definition as well as classification of halogen derivatives. Halogen derivatives of alkane, halogen derivatives of alkanes, when we consider, we had seen monohalogen, dihalogen and tritetrahalogen derivatives. If we take methane as an alkane and if we bring about substitution of one hydrogen by one halogen atom, we get here CH3X. X is halogen. X is halogen, chlorine, bromine or iodine. So this is monohalogen derivative because one halogen atom is directly bonded. Next we can substitute two hydrogen atom by two halogen atom. We get CH2X2. We call it as dihalogen derivative. Likewise, we can replace the third and the fourth. That means on the fourth, we can replace first 3 and then the 4. We get CHX3 trihalogen derivative. And finally, we get maximum, that is tetrahalogen derivative, when all the 4 hydrogen atom of methane are replaced by 4 halogen atom, CX4 tetrahalogen derivative. So this is in general the classification of alkyl halide on the basis of number of halogen atom. If we change this X with chlorine, we get CH3Cl. We name it as methyl chloride. We call it as methyl chloride. If we change or we can call it as chloromethane. It is to be called as chloromethane. If we change this halogen with 2 chlorine, we get CH2Cl2. We name it as dichloromethane, monochloromethane and now dichloromethane. Likewise, if 3 hydrogen atom with 3 chlorine, we call it as trichloromethane. Trichloromethane. And finally, when all the 4 hydrogen of methane are replaced, we call it as tetrachloromethane. Tetrachloromethane. So, my dear students, we have classified alkanes on the basis of number of halogen atom added, है ना? If there is only, देखिए मैं encircle कर रहा हूँ, only one hydrogen atom replaced by one halogen, we call monohalogen और उसका example ये methyl chloride या monochloromethane. If 2 hydrogen replaced by 2 chlorine atom, we call it as dichloro. If 3, then trichloro. If 4, then tetrachloro, like this. Now, this halogen derivatives can be further classified. So, this classification is important now. So, halogen derivatives are further classified. Halogen derivatives are further classified on the basis of
position of carbon atom to which halogen is bonded, to which halogen atom, we call it as halide ion, है ना। तो halide ion और halogen atom वैसे डिफरेंस है, समझेंगे उसको। पोजीशन ऑफ कार्बन एटम टू विच halogen atom is bonded, आपको तो वैसे पता ही होगा कि when we write chlorine it is Cl, when we call chloride it is Cl minus 1, when we call bromine we write Br and bromide is Br minus 1, likewise iodide and fluoride। तो ये halide यानी chloride, bromide, iodide, fluoride like that। Halogen means chlorine, bromine, iodine like that। तो ये सब को आप याद रखेंगे। Now we begin with the new classification method where halogen derivatives are further classified on the basis of position of carbon atom to which halogen atom is bonded। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है देखते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास में and that is alkyl halide or haloalkanes, alkyl halide or haloalkanes। Now this you know, alkyl halide or haloalkanes, alkyl halide is the common name and haloalkane is IUPAC name, nothing great in it। तो IUPAC nomenclature पढ़ेंगे अभी हम। So alkyl halide is what? It is nothing but mono halogen derivative। जैसे हमने यहाँ लिया C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन Br से रिप्लेस किया तो क्या फॉर्मूला मिलेगा? C2H5Br, C2H5Br, correct। So this is what we call as mono halogen derivative and commonly called as alkyl halide। जैसे आप इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो अल्काइल हैलाइड के हिसाब से क्या, ये इथाइल ग्रुप हुआ और ये ब्रोमाइड, तो नोमेनक्लेचर आया इथाइल ब्रोमाइड। तो मैं अभी आपको क्या समझा रहा हूँ, व्हाट इज अल्काइल हैलाइड? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव इन कॉमन नेम सिस्टम is known as alkyl halide। Now funda is clear। mono halogen derivative, ये mono halogen derivative है ना, this is commonly called as alkyl halides, alkyl halides। तो यहाँ भी वही किया हमने, वन हाइड्रोजन अल्केन इथेन है उसको रिप्लेस किया Br के साथ में, तो क्या मिल गया? C2H5Br and this is ethyl bromide। We call it as alkyl halide because nomenclature कैसे बना? First word is alkyl group, second word is halide ion, we call it as alkyl halide। It is nothing but mono halogen derivative। So what do you mean by alkyl halide or mono halogen derivative? It is a type of halogen derivative in which halogen atom is directly bonded to sp3 hybridized carbon। ये आपको पता है, हमने पढ़ाया था, है ना। sp3 हाइब्रिडाइज क्या होता है और sp2 हाइब्रिडाइज क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज क्या होता है। एक बार जस्ट रिवाइज करने के लिए, जब आपको सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में दिखेगा तो ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो दोनों कार्बन, कार्बन 1 and 2 है ना, both the carbon will show sp2 hybridization। Likewise when there are three triple bond between two carbon atom, we get
करेक्ट। तो यहाँ भी बोथ द कार्बन एटम विल अंडरगो sp3 sp2 and sp hybridization. So coming back to this point, what happens in alkyl halide or haloalkanes, that halogen atom is directly bonded to sp3 hybridized carbon. तो यहाँ पर एग्जाम्पल अपने सामने है, ये आपने एग्जाम्पल बनाया है CH3Cl, ठीक है डियर, ये CH3Cl आ गया। ये CH3Cl में कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड बना है। ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है हाइड्रोजन के साथ, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। तो हेलोजन is directly bonded to sp3 hybridized carbon and such halogen derivatives are known as alkyl halide। फंडा समझा है क्या आपको कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि हेलोजन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बॉन्डेड है। तो such type of alkyl halide, such type of monohalogen are known as alkyl halide। अब इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कल हमने और भी नेचर ऑफ कार्बन एटम देखा था, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। नाउ हियर दिस इज द कार्बन which is bonded to another carbon through single covalent bond, and this carbon is having halogen to it। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कार्बन, एंड प्राइमरी कार्बन is bonded to chloride, we name it as primary alkyl halide, primary alkyl halide। अब प्राइमरी ये टर्म हम नहीं यूज करते, उसके जगह नॉर्मल यानी N यूज करते हैं, नॉर्मल का N अल्काइल हलाइड, नॉर्मल अल्काइल हलाइड, यानी कि फर्स्ट कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उससे हेलोजन अटैच है, इसी को हम सेकेंडरी अल्काइल हलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को हम टर्शियरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी में बेटा कैसे होगा, देखो ये कार्बन जिसपे हेलोजन बॉन्डेड है, मैंने मार्किंग कर दिया, हेलोजन बॉन्डेड है। नाउ इफ दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू two other carbon atom, then we call it as secondary alkyl halide, correct है, we call it as secondary alkyl halide। अब इसका नोमेनक्लेचर दे सकते हैं आप, तो इसे कहेंगे हम सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। अब ये एक एक्सेप्शन है सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, इनफैक्ट इसको सेकेंडरी नहीं बोलते, इसको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलते, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या समझा रहा हूँ मैं, आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों कैंसिल कर दिया, इसको सेकेंडरी नहीं बोलते हुए आइसो बोला है। सिर्फ यही एक एग्जाम्पल है जहाँ पर हम प्रीफिक्स आइसो लगाते हैं, बाकी जो हायर मेंबर अगर इसमें मिला हमको, जैसे ये हायर मेंबर आ गए, हाउ मेनी 3 कार्बन, हियर इज द 4th कार्बन CH3, है ना, ये या इसको आप हाइड्रोजन रख लीजिए, यहाँ पर CH3 और इस पे ये हेलोजन। नाउ हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4, ऑल द वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम। प्लीज पे अटेंशन, ये थोड़ा सा फंडा यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब उसको आइसो क्यों बोलते हैं, उसको सेकेंडरी क्यों नहीं बोलते, वही मैं समझा रहा हूँ कि आप अगर थेरेटिकली जाएंगे तो क्या बोलेंगे इसे, सेकेंडरी प्रोपाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल और सेकेंड कार्बन पे हेलोजन है, तो नेचुरली क्या नोमेनक्लेचर निकलेगा हमारा, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, हम इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बाकी सब में आप आइसो लगा सकते हो, जैसे ये एग्जांपल लिखा भी मैंने,
यहाँ पर भी ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन से Cl अटैच है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाउ मेनी यू सी? 4, करेक्ट? 1 2 3 4 कार्बन। सेकेंड कार्बन, दिस इज द सेकेंडरी कार्बन, secondary carbon. Why secondary? Bonded to two other carbon, dear. So bonded to two other carbon, secondary carbon, and this carbon is having halogen. तो इसका nomenclature आप क्या बोलेंगे? Secondary. Total number of carbon 4, butyl, और halogen क्या है? Chloride, halide ion. Nomenclature क्या बना? Secondary butyl chloride. मैं इसको आइसो नहीं बोलूंगा, है ना? सिर्फ आइसो एक्सेप्शन याद रखेंगे, वो प्रोपाइल के लिए लगता है, रहता है सेकेंडरी, बुलाते हैं आइसो। सही है? तो ये हो गया फंडा काय का? हेलोजन डेरिवेटिव्स में फर्स्ट अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन वेयर हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 hybridized carbon. sp3 hybridized carbon कैसे पकड़ा? The carbon which is bonded through single covalent bond we call as sp3. और ये हेलोजन अल्काइल हैलाइड का हमने प्राइमरी वाला एग्जाम्पल देखा, सेकेंडरी वाले 2 एग्जाम्पल देख लिए, अब एक टर्शियरी वाला भी एग्जाम्पल देख लो। ये Cl लगा दिया बेटा, ये इसको टर्शियरी बनाओ, जिस कार्बन पे हेलोजन है उसको टर्शियरी बनाओ। टर्शियरी बनाओ मीन्स इट शुड बी डायरेक्टली बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। आ गया? इट इज डायरेक्टली bonded to 3 other carbon and this carbon is bonded to halogen. सही है? तो halogen is chloride, carbon is tertiary, tertiary chloride। लेकिन टर्शियरी क्लोराइड में कितने कार्बन है वो तो लिखना पड़ेगा। कितने हैं? 4 कार्बन है, तो प्रीफिक्स क्या लगता है? टर्शियरी। कार्बन नंबर 4, तो ब्यूटाइल, हेलोजन इज क्लोराइड। कंप्लीट नोमेनक्लेचर टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इज इट क्लियर? तो हमने ये अल्काइल हैलाइड इसको 3 सब क्लासिफिकेशन कर लिया कि अल्काइल हैलाइड इज सब क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। सर टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड को आइसोब्यूटाइल क्लोराइड नहीं बोल सकते? नहीं, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, मैंने कहा ना आइसो सिर्फ प्रोपाइल में लगाइए, रेस्ट इज सेकेंडरी टर्शियरी रहेंगे। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप of halogen derivative of alkane, and that is what we call alkyl halide or halog alkanes. In short, फिर से मैं बोलता हूँ, what do you mean by alkyl halide or halo alkanes? They are the monohalogen derivative. They are the monohalogen derivative, and मोनोहेलोजन डेरिवेटिव तो समझता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो एक हेलोजन से तो आपको मोनोहेलोजन मिलता, और वो मोनोहेलोजन को कॉमन नेम के हिसाब से क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। आईयूपीएसी नेम के हिसाब से क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन। और ये अल्काइल हैलाइड को हमने फर्दर क्लासीफाई किया काय में? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। लेकिन ये अल्काइल हैलाइड होता क्या है? सिंपल, व्हाट डू यू मीन बाय अल्काइल हैलाइड? Alkyl halide is a monohalogen derivative in which halogen atom is directly bonded to sp3 hybridized carbon atom. तो ये पूरा रिवाइज कर दिया अच्छे से, आपको ध्यान में रखना है। अभी जो नेक्स्ट टाइप अपने को मिलेगा वो है सेकेंड टाइप एलाइलिक हैलाइड्स। इसको समझेंगे अब। अलाइलिक हैलाइड्स क्या है? बहुत ही हलाली वाला हैलाइड है ये अलाइलिक हैलाइड। सिंपल है, हेलोजन किससे बॉन्डेड है इस पे फोकस रखने का है ना। अलाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है? हेलोजन एटम इज डायरेक्टली bonded to
sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी फंडा क्लियर हो गया कि हेलोजन को एक sp3 यानी सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच करना है, which is next to double bonded carbon atom, which is next to double bonded carbon atoms. यानी हमारा हेलोजन एटम सिंपल है बेचारा, वो कैसे कंबाइन होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन वो वाला कार्बन क्या करता है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन को जाके अटैच हो जाता। हमारा कार्बन बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता, लेकिन ये वाला कार्बन के साथ में कौन से दो जन आके जुड़ जाते हैं, ये दो कार्बन आते जो डबल बॉन्ड से अटैच रहते है ना। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है कि ये कार्बन तो एकदम सिंपल है, सिंगल अटैच है हेलोजन, लेकिन इसके साथ आके जुड़ने वाले कार्बन कौन से होते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। such halogen derivative is known as allylic halides. Allylic halides, ALLYLIC, allylic halide। इसका नोमेनक्लेचर IUPAC आप कर सकते हो। ये कंपाउंड कौन सा है, एल्कीन, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, एल्कीन है। हाउ मेनी कार्बन, 3, यानी क्या बनेगा, प्रोपीन, 1 ब्रोमो प्रो 3 इन। हाँ प्रोपीन है। अब प्रोपीन में आपको डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को या हेलोजन को, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड या हेलोजन को, हेलोजन को हमें प्रेफरेंस देना होगा। तो 1 ब्रोमो प्रोपीन, या क्या बोला है नोमेनक्लेचर उसने, 2 इन, 1 ब्रोमो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पे क्या है, 1 ब्रोमो प्रोप, डबल बॉन्ड की पोजीशन बोलेंगे बिटवीन 2 and 3, तो लोएस्ट देखना है हमको, प्रोप 2 इन, 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन is the nomenclature of this compound, है ना, ठीक है। 3 ब्रोमोप्रोपीन, ये नंबरिंग को ऐसा करें तो कपिल, नंबरिंग, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, हाँ जी। अब बोलो नोमेनक्लेचर, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, दिस इज द nomenclature of compound, ओके। तो क्या मिला इसका नोमेनक्लेचर, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, या सिंपल आप बोल सकते हैं जब 1 इन आ गया तो 3 ब्रोमो प्रोपीन, ये भी लिख सकते हैं आप, 3 ब्रोमो प्रोपीन, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज allylic halide? Allylic halides are those monohalogen derivatives in which halogen atom is directly bonded to sp3, again sp3, bonded to sp3 hybridized carbon, which in turn is bonded to double bonded carbon atom, which in turn is linked to double bonded carbon atom। तो ये है allylic halide। अब ये allylic halide को एरोमेटिक कंपाउंड में भी बना सकते हैं हम, है ना। तो ये एक हम हेक्सागोनल रिंग लेते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, लेकिन हेलोजन हम sp3 हाइब्रिडाइज से अटैच करते हैं। ये वाले कार्बन जहां डबल बॉन्ड आ गया बेटा, ये दोनों कार्बन sp2 होंगे, समझो जरा,
और ये कार्बन जो रहेगा ये sp3 होगा। बाकी सारे कार्बन sp3 होंगे, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। जहां डबल बॉन्ड आ गया वहां क्या आता है sp2, तो ये sp2 और ये sp3। अलाइलिक में हमने क्या लिखा है, हेलोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 which in turn is bonded to what, sp2, that means double bonded carbon, which in turn is bonded to double bonded carbon। डन। तो ये नोमेनक्लेचर मिला हमको। इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या लिखेंगे आप, जल्दी से बोल दो। हाँ? इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, आवाज अटक रही है आपकी। ब्लूटूथ ऑन है क्या मेरा? ओके, सो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, है ना। 1 ब्रोमो, 1 नहीं 2 ब्रोमो, सॉरी 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकेंड कार्बन हो गया, तो ये हो गया अलाइलिक हलाइड, सेकेंड हो गया। अब थर्ड टाइप देखते हैं हम। थर्ड टाइप क्या है, बेंजाइलिक हलाइड्स। तो नाम से ही समझ में कुछ हिंट मिल रही है अपने को। बेंजाइलिक हलाइड नाम से क्या समझता है कि बेंजीन रिंग होना चाहिए और हेलोजन होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि फिर से हेलोजन एटम is directly bonded to sp3 hybridized carbon atom, which in turn is bonded to benzene ring, bonded to aromatic ring। अब एरोमेटिक यानी हमारे लिए बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन sp2 होता है, क्योंकि बेंजीन रिंग में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होने से एवरी कार्बन गेट sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आप देखेंगे यहाँ पर तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, देखिए हर कार्बन डबल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ में है, तो ऑल द कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, करेक्ट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब हमारे लिए क्या है, हेलोजन एटम शुड डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3, यानी यहाँ से एक बॉन्ड बनाएंगे और ये CH2Cl। अगर मैं यहाँ डायरेक्टली Cl लिख देता तो रिंग से अटैच होता, रिंग वाले कार्बन, और रिंग वाला कार्बन यानी sp2 होता। तो बेटा अभी ये कार्बन कौन सा है, sp3, समझा आपको। तो हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 which in turn is directly bonded to benzene ring। ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे हम, इसका मतलब ही बदल जाएगा। आपने जरा हेलोजन डायरेक्टली रिंग से अटैच कर दिया तो, है ना। दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम भी देखेंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज, करना क्या है हमको, बेंजाइलिक हलाइड पढ़ना है। हेलोजन को sp3 से अटैच करो और ये sp3 बेंजीन रिंग से अटैच होगा, तो इसे हम कहेंगे बेंजाइलिक क्लोराइड। द कंपाउंड इज बेंजाइलिक क्लोराइड, हो गया बेंजाइलिक क्लोराइड। दिस इज द सेकेंड क्लासिफिकेशन। नाउ we'll move to the fourth classification, and the fourth is vinyl halide। ये सिंपल है,
विनाइल हैलाइड्स। फोर्थ, विनाइल हैलाइड्स में क्या होता है कि हेलोजन एटम is directly bonded to sp2 hybridized carbon atom, sp2 hybridized carbon atom। समझा क्या फंडा डिफरेंस? अभी तक जो तीन पढ़े हमने, हेलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 था। अब क्या हो रहा है विनाइलिक हैलाइड में हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। और हमें पता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन यानी डबल बॉन्डेड कार्बन और sp2, इसकी वैलेंसी कितनी, 2 वैलेंसी फ्री है, हो गया। एवरी कार्बन इज टेट्रावैलेंट। नाउ attach halogen to this sp2 hybridized carbon। इससे भी अटैच कर सकते हैं, ये भी sp2 होगा। बोथ आर sp2 hybridized कार्बन, एक कार्बन से हेलोजन अटैच है। तो ये कंपाउंड का नाम क्या होगा? अब डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन, यानी कौन सा कंपाउंड होता है? इथीन और इथाइलिन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथीन और इथाइलिन। इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे हम? इसका नोमेनक्लेचर क्लोरोइथीन है ना, सिंपल बोलेंगे क्लोरोइथीन। 2 कार्बन है, क्लोरोइथीन। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये विनाइल हैलाइड हो गया। अभी हमको 5 and 6 भी पढ़ना है एंड वी आर गोइंग टू एंड अप विद दिस मीटिंग। हम फिर से ज्वाइन करते हैं, आई विल कंटिन्यू। ओके, तो आप 1-2 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करेंगे। अभी वही लिंक पे फिर से ज्वाइन करना है, रीज्वाइन करना है आपको, है ना। सम माल फंक्शनिंग वी आर फेसिंग फ्रॉम Zoom itself, so let us continue and please do not chat in between the lecture. Everyone, I am requesting everyone not to chat in between. It will create some disturbance to other students also. So coming back to classification of monohalogen derivative, एक बार फिर से रिवाइज कर ले। पहला टाइप क्या हमने देखा? अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन्स। उसमें क्या हो रहा था? हेलोजन sp3 बॉन्डेड था। देन सेकेंड इज व्हाट? allylic halide, again halogen is bonded to sp3, but that sp3 in turn is bonded to double bonded carbon atom, तो ये allylic हो गया। then third हमने देखा benzylic halide, halogen is again bonded to sp3 hybridized carbon and that carbon is bonded to benzene ring or aromatic ring, which is in fact sp2 hybridized। बेंजाइलिक के बाद आपने यहाँ देखा विनाइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स इज नथिंग बट अल्कीन हैलाइड। हम लोग इसको बोल सकते हैं हेलो अल्कीन्स भी, ऐसा हम इसको कॉल कर सकते हैं, हेलो अल्कीन्स। व्हाट इज हैपनिंग हियर? दैट हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 hybridized carbon atom. So here is our halogen atom, which in turn is bonded to a carbon which is sp2 hybridized, known as vinyl halide or haloalkenes। इसका बेटा nomenclature भी देखा हमने, हेलो क्लोरोइथीन। ओके, अब है नेक्स्ट हेलो अल्काइंस। अब हेलो अल्काइंस, alkynes means there should be a triple bond between 2 carbon atom and our dear halogen is bonded to one of the triple bonded carbon atom directly, and this is what we call as haloalkynes. What could be the nomenclature of it? Chloroethine. The nomenclature is chloroethine. Halogen is bonded to sp hybridized carbon atom,
because why it is sp? It is having triple bond with the other carbon, and this carbon is having halogen. We call it as haloalkynes, named as chloroethane. And the last we move is haloarenes. What happens in haloarenes? Here again halogen is directly bonded to कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग. ये बेंजीन रिंग बना लिया? नहीं, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन. जब आप इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाएंगे, when you put alternate double bond, then it becomes benzene, and to this benzene now halogen is directly bonded, and we call it as haloarene. The compound will be known as chlorobenzene. The compound is known as chlorobenzene, and this compound also having benzene structure, but halogen is first bonded with sp3, which in turn is bonded to benzene ring. और यहाँ क्या difference दिख रहा है? Halogen is directly bonded to benzene ring, and we call such compound as haloarenes. तो हमने total 6 types के क्लासिफिकेशन देख लिया. पहला एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो सभी के लिए, है ना, रिवाइज कर रहे हैं. आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा रिवीजन जरूरी भी है. एंड डोंट वरी अबाउट द नोट्स. आपको इस चैप्टर के प्रिंटेड नोट्स पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे, और जब आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो ये पीडीएफ फाइल के नोट्स आप अपने साथ में लेके आएंगे. उसमें मुझे हर एक जगह फिल इन द ब्लैंक रहेगा, वो फिल इन द ब्लैंक करना पड़ेगा आपको. ठीक है? तो कैसा होगा? जैसे यहाँ लिखा है बेंजाइलिक हैलाइड, स्टेटमेंट लिखा है, एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर आपको लिखना पड़ेगा उसमें. लाइक दैट आपको नोट्स अपने कंप्लीट करने होंगे. तो एक बार फिर से हेलोजन, मोनो हेलोजन का क्लासिफिकेशन है ना. मोनो हेलोजन, टाइप्स ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, टाइप्स ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, और दैट डिपेंड्स अपॉन द कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज बॉन्डेड. चलिए बोलेंगे. व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल वी टू? वी हैड अल्काइल हैलाइड्स, फर्स्ट टाइप. और इसमें क्या हो रहा था? कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू sp3. बस इतने कीवर्ड याद रखेंगे आप. अल्काइल हैलाइड. इस अल्काइल हैलाइड को आपने क्या नाम दिया था? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव. ओके, अल्काइल हैलाइड, या IUPAC ने दिया था हेलो अल्केन्स. तो अल्काइल हैलाइड्स आर दोस वेयर कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज. सेकेंड आपने क्या लिखा? एलाइलिक हैलाइड्स. एलाइलिक हैलाइड्स में क्या हो रहा है? कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू sp3, but which in turn is bonded to double bonded carbon atom. टर्न कर दिया कार्बन को हमने, और यहाँ पर एग्जाम्पल असेंशियल हो जाता है. तो अपना हेलोजन काय से बॉन्डेड है? अपना हेलोजन काय से बॉन्डेड है? sp3 से. sp3 से बॉन्डेड है, लेकिन ये वाला कार्बन जो हेलोजन से बॉन्डेड है वो काय से अटैच हो गया? डबल बॉन्डेड से. तो अलाइलिक हो गया. थर्ड है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड. बेंजाइलिक हैलाइड में भी क्या है? अवर हेलोजन एटम लिखना चाहिए मुझे, कार्बन के लिखना. हेलोजन एटम is directly bonded to sp3 carbon. ओके, बेंजाइलिक कार्बन एटम, यानी यहाँ क्या होगा? हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp2 hybridized carbon. bonded to sp3 hybridized carbon. फिर से, but which in turn is bonded to benzene ring, bonded to
बेंजीन रिंग। अब थोड़ा सा नया टाइप का है, इसीलिए पूरा स्टेटमेंट लिख लिए। जो सिंपल था उसको एक लाइन में लिख के भी छोड़ दिया, इवन एग्जाम्पल भी नहीं लिखे, वो इतना सिंपल है। ये बेंजाइलिक हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज बट विच इन टर्न इज बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग। चलो जी, हमारा हेलोजन आ गया, ये हमारा हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हो गया, और ये sp3 अब काय से अटैच हो रहा है, बेंजीन रिंग से। तो ये बेंजीन रिंग से sp3 अटैच हो गया, ये वैलेंसी। तो बेटा ये कार्बन कौन सा मिला, sp3। देखिए रिवीजन हो गया। नंबर 4 क्या है अभी हमारे पास में, बेंजाइलिक के बाद में क्या है, विनाइल हलाइड, है ना, विनाइल हलाइड्स। फोर्थ इज विनाइल हलाइड्स। विनाइल हलाइड्स इज नथिंग बट हेलोअल्कीन्स। हेलोअल्कीन्स, इसमें क्या होता है, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 hybridized. हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू, डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 hybridized carbon, डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 hybridized carbon। और sp2 यानी डबल बॉन्ड, इसके साथ अपना प्यारा हेलोजन अटैच हो गया, ये वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गया। ईच कार्बन इज टेट्रावैलेंट, दिस इज टेट्रावैलेंट, दिस इज टेट्रावैलेंट। नाम क्या लिखा आपने इसका, क्लोरोईथीन। 4th टाइप आ गया। 5th टाइप हेलो अल्काइंस। तो ये तो बहुत सिंपल है, हेलो अल्काइंस, है ना। हेलोजन इज बॉन्डेड टू बोलेंगे, बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, इसके साथ प्यारा हेलोजन आ गया, तो ये हो गया हेलो अल्काइंस। अब क्या बन गया ये कंपाउंड, क्लोरोईथाइन, दिस इज क्लोरोईथाइन। और 6th टाइप हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स, ये तो सबसे सिंपल है, हेलोजन इज बॉन्डेड टू बोलेंगे, हेलोजन इज बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग डायरेक्टली। कौन सा रिंग, बेंजीन रिंग। चलो ये बेंजीन रिंग बना दिया, और ये सर्कल भी याद हो गया होगा अभी आपको। सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो ये कंपाउंड का नाम क्या लिखा, क्लोरोबेंजीन। हो गया, रिवीजन भी हो गया। टोटल 6 टाइप्स। नाउ वी विल मूव टू अनदर सिंपल बट इंटरेस्टिंग पार्ट, एंड दैट इज nomenclature of alkyl halides, nomenclature of monohalogen derivatives। तो हेडिंग देते हैं, nomenclature of monohalogen derivatives। बेटा मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स को प्यार से क्या बोलते हैं हम, अल्काइल हलाइड्स, ये भी बोल सकते हैं आप। लेकिन ये सब मोनोहैलोजन है, जहां पर सिंगल हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड है ना। तो हम नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स, और इसमें 2 टाइप से नोमेनक्लेचर करते हैं, एक है कॉमन नेम सिस्टम और दूसरा है IUPAC सिस्टम। तो ये CNS यानी क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कॉमन नेम सिस्टम। अब कॉमन नेम सिस्टम में मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर है अल्काइल हलाइड्स। अब ये कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, द फर्स्ट नेम इज द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप टू विच हैलोजन इज बॉन्डेड, एंड द सेकेंड वर्ड इज द नेम ऑफ हलाइड आयन। जैसे आपको एग्जाम्पल से समझा दें हम, ये CH3I, C2H5Br और C3H7Cl, ये 3 मोनोहैलोजन है,
सिर्फ सिंगल हैलोजन दिख रहा, इसका कॉमन नेम लिखना है तो उसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट वर्ड इज द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप और सेकेंड वर्ड क्या होगा इसमें, सेकेंड वर्ड इज हलाइड आयन। मैंने आपको समझाया था हलाइड आयन यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, करेक्ट है। तो 3 हलाइड आयन है। अब ये कंपाउंड फर्स्ट वर्ड क्या दिख रहा है, मिथाइल CH3, we call it as methyl and the second word is iodide, तो nomenclature बना methyl iodide। next इथाइल ब्रोमाइड, ethyl और halogen is bromide, ethyl bromide। थर्ड देखेंगे आप, अल्काइल ग्रुप पहले पकड़ना है प्रोपाइल प्रोपाइल क्लोराइड और सेकेंड वर्ड इज हलाइड दैट इज क्लोराइड। इट इज सो सिंपल, करेक्ट। तो फर्स्ट वर्ड इज द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, सेकेंड वर्ड इज द नेम ऑफ हलाइड आयन एंड वी हैव नेम्ड दिस 3 कंपाउंड अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम सिस्टम। ये इसका रूल नंबर 1 अगर कंसीडर करें और तो रूल नंबर 2 में क्या होता है कि हेलोजन is bonded to what type of carbon atom, whether halogen is bonded to primary, secondary or tertiary carbon। इसमें क्या बोलते हैं, for isomeric alkyl halides, समझेंगे ये फंडे को जरा, है ना। for isomeric alkyl halides prefix, प्रीफिक्स यानी जो पहले लगाते, प्रीफिक्स n, iso, secondary and tertiary are used for isomeric alkyl halide। यानी कि अगर मैं ये एक एग्जांपल ले लूं C2H5Br, sorry C4H9Br, if I take C4H9Br, इसके आइसोमर्स बन सकते हैं, चेन आइसोमर्स। हमने अल्केन्स में पढ़ा था कि चेन आइसोमर पॉसिबल होते हैं वेयर कार्बन चेन गेट डिफरेंट। तो इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं पहले उसको लिखते हैं हम और फिर नोमेनक्लेचर देखेंगे। जैसे फर्स्ट मेंबर क्या बनेगा, आपको एक नॉर्मल चेन वाला, और ये नॉर्मल चेन में फर्स्ट कार्बन से Br अटैच है। दिस इज द फर्स्ट CH3 CH2 CH2 Br। क्या लिखेंगे, CH3 CH2 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 Br। आगे बताइए, 4 कार्बन, 9 हाइड्रोजन एंड 1 Br। एक फर्स्ट आइसोमर बना, इसका सेकेंड आइसोमर बनाते हैं CH3 CH2 CH Br CH3। इसमें भी 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको, सेकेंड आइसोमर बन गया। अब इसी का थर्ड आइसोमर नीचे कवर हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, थर्ड आइसोमर बनेगा CH3 CCH3 CCH3 और ये Br। अभी मैंने आपको पढ़ाया था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो वही चीज आ गई यहाँ पर कि C4H9Br exist in 3 isomeric form and these 3 isomeric forms we see here। The first is what, primary। सेकेंड में क्या है, हेलोजन इज बॉन्डेड टू सेकेंडरी कार्बन, और थर्ड एग्जांपल में क्या दिख रहा है, हेलोजन इज बॉन्डेड टू टर्शियरी कार्बन। फिर से एक बार, C4H9Br को हम बोलते हैं ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सही है, कॉमन नेम ब्यूटाइल है, 4 कार्बन और Br है तो ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। Now this butyl bromide exists in 3 isomeric form,
where halogen is bonded to primary, Br halogen is bonded to secondary, Br halogen is bonded to tertiary carbon. तो इसमें प्रीफिक्स लगा देंगे. प्राइमरी के लिए प्रीफिक्स n लगता है, तो इसका नोमेनक्लेचर बनेगा n ब्यूटाइल ब्रोमाइड. दिखाई दे रहा है सभी को? ध्यान दे रहा है? फिर बाद में समझेगा नहीं. n ब्यूटाइल ब्रोमाइड. नेक्स्ट क्या होगा बेटा? अब इसमें प्रीफिक्स लगाएंगे सेकेंडरी, क्योंकि हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है, तो सेकेंडरी. और ब्यूटाइल क्लोराइड तो रहने ही वाला है, बदलेगा क्या वो? नहीं. ब्यूटाइल ब्रोमाइड. थोड़ा ठीक से लिखना नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा झुकने पड़ रहा है. ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो आप समझ रहे हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. नाउ टर्शियरी में क्या आ जाएगा? प्रीफिक्स लगा दो टर्शियरी. क्यों टर्शियरी? क्योंकि टर्शियरी कार्बन से Br अटैच है. वी कॉल इट एज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. तो मैंने क्या सेकेंड रूल लिखा है आपको? सेकेंड रूल बेटा क्या लिखा दिया? फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हलाइड्स, है ना? आइसोमेरिक किसके आइसोमर बने? ब्यूटाइल ब्रोमाइड के. और वो ब्यूटाइल ब्रोमाइड में प्रीफिक्स कहीं n लगेगा, कहीं आइसो लगेगा, कहीं सेकेंडरी लगेगा, कहीं टर्शियरी लगेगा. तो यहाँ पर n ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन नेम सिस्टम. ओके, तो कॉमन नेम सिस्टम फॉर मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स आपको समझ गया. कॉमन नेम. अब क्या बनता है? IUPAC नोमेनक्लेचर. IUPAC नोमेनक्लेचर. हाउ मेनी मिनट्स की बोल तो कितने मिनट पढ़ा लिया मैंने? 20 minutes 20 मिनट्स मोर. पढ़ा लिया आपने. खत्म. ओके, तो IUPAC नोमेनक्लेचर अभी पढ़ना है अपने को, है ना? तो एक काम करते हैं, इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं. आज पहला दिन, इतना ज़्यादा डोज नहीं होना चाहिए. तो कल IUPAC नोमेनक्लेचर आप जरा इसको रिवाइज करेंगे. और ये लेक्चर बेटा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मैं ऐसा ही ऑनलाइन क्लास लेता रहूँगा. तो आपको ये टाइम मेरा 5 to 6:30 तक मान लीजिए, 5 to 6:30 तक का टाइम ये केमिस्ट्री के लिए आप रिजर्व रखेंगे, है ना? टेल अदर फैकल्टी मेंबर्स कि ये 5 to 6:30 एवरी डे आपका केमिस्ट्री का टाइम है. ओके, नो रिकॉर्डिंग विल बी सेंड टू यू and you will get PDF file for the notes. See you in the next class. Thank you very much. See you in the next class.